Good morning, students. Today we'll learn how to write letter for placing order. As in the previous video, I discussed that letter is of 6 marks and the 6 marks are divided into 3 parts: format, content and expression. 1 mark for content, format, 3 marks for content and 2 marks for expression. First of all, we must know how to write format. As I discussed it in the previous video as well, let's revise it. Format includes sender's address. First of all, we have to write the sender's address. जो letter भेज रहा है उसका address. After that, we have to leave a line blank. Then we have to mention date, but don't write the word DATE. इस तरह से नहीं लिखना है, सीधे सीधे हमें लिखना है like 15th June 2020. You can write like this, not like this 15th. That will be a wrong pattern. We have to write this. Then one more line blank. Receiver's address. Now receiver's address include receiver's designation, name of the office, institute. The address mean particular place. After that we have to write the word subject. Subject should be very precise. No helping verb is used while writing the subject or topic of the letter. After that, salutation means we have to write sir or madam. Then body of the letter, which is written in 2 or 3 paragraphs, including or highlighting all the important points as we have discussed earlier. Then we have to write complimentary clause. Complimentary clause means where we have to write yours faithfully, yours sincerely, yours truly, yours obediently, whatever we have to write. Then below complimentary clause we have to write signature. We have to give the signature of the sender, and below that we have to write the designation of the sender. Now we'll learn how to write a placing order letter. 6 marks for we have to write. Format we have discussed. Now content. While writing a placing order, what we have to include in the content? First of all, what we have to place. क्या मंगवाना है? When? कब तक मंगवाना है? Quantity. कितना मंगवाना है? कैसा? Quality wise ध्यान देना. Quality कैसी मंगवानी है? We have to discuss about discount as well. Then mode of transport, mode of payment. Mode of payment include कोई भी पेमेंट का मोड हम यूज कर सकते हैं. इट कुड बी थ्रू चेक, इट कुड बी बाय कैश और बाय पेटीएम और एनी अदर मोड. We have to mention the delivery time as well, and if any other relevant detail is also there, we can mention that. While writing a subject, we can give subject in different ways. It could be placing order for the things required. बुक्स है, अप्लायंसेज हैं, होम अप्लायंसेज हैं, और भी जो भी चीज है बुक्स की जगह आप उसको यूज कर सकते हैं. प्लेसिंग ऑर्डर फॉर बुक्स हो सकता है. इट कुड बी ऑर्डर फॉर बुक्स, या जो भी आप मंगवा रहे हैं वो हो सकता है, या ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ बुक्स. इन तीनों टाइटल में से हम सब्जेक्ट के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं वेन एवर वी हैव टू प्लेस ऑर्डर. वी हैव अ सैंपल. लेट डिस्कस दैट. यू आर नीलम नकुल, librarian of Zenith Public School, New Delhi. Write a letter to the manager of Book World, New Delhi, placing an order for books in about 120 to 150 words. Here we have to understand who is the speaker or who is the writer, who is the sender, what is his address or what is the receiver's address. So you mean the writer, sender. You are Neelam or Nakul. जो हम डेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं डेजिग्नेशनेबल की सेंडर्स एड्रेस में, जो सेंडर है वो नीलम या नकुल के नाम से हमने एंट्री करनी है. लाइब्रेरियन डेजिग्नेशन क्या है नीलम या नकुल की? ई और शी इज लाइब्रेरियन ऑफ जेनिथ पब्लिक स्कूल. राइट. ये कौन है? ये हमें क्या मिल गया है? सेंडर्स एड्रेस. सो दिस इज सेंडर्स एड्रेस. हु इज द रिसीवर? मैनेजर ऑफ. So manager of Book World. Manager is the designation and Book World is the proper office and New Delhi is the place. Placing an order for books in about 120 to 150 words.
ऑर्डर फॉर बुक्स, ये ऑर्डर फॉर बुक्स की जगह ऑर्डर फॉर होम अप्लायंसेज हो सकता है, या और किसी चीज के लिए भी ऑर्डरिंग हो सकती है। तो हमने डिस्कस किया है दिस इज द sender's address. Here we have to write how we have to write that. Now let's do that. First of all, as we have discussed, sender's address. This is Jainit Public School, place New Delhi. One line blank, then date 1st June 2020 or June 1st, 2020. You can do that. One more line blank. Who is the receiver? The manager. The manager. This is the designation. Book word, प्रॉपर ऑफिस और इंस्टीट्यूट और जो जिससे भी वो बिलोंग करता है वो, एंड प्लेस इज न्यू दिल्ली. सो सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस वी हैव टू राइट. सब्जेक्ट विल बी एज डिस्कस्ड अर्लियर, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर बुक्स, ऑर्डर फॉर बुक्स और ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ बुक्स. यू कैन राइट एनी वन ऑफ दीज. देन सैल्यूटेशन सर. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि प्लेसिंग ऑर्डर करते हुए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना होता है, क्या मंगवा रहे हैं, कितना मंगवा रहे हैं, कितना डिस्काउंट चाहिए, या डिस्काउंट के बारे में बात करना, और क्या टर्म्स कंडीशन होंगी, क्या मंगवाना है, कितना मंगवाना है, उनकी क्वालिटीज सारी शो करनी है, किस तरह से मंगवाना है, कैसे पेमेंट होगी. तो इन सारी चीजों को हमने इंक्लूड करना है. इसमें भी थोड़ा सा चेंज करके आप कोई भी दूसरा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. सो एज पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, या आप ये नाम भी लिखें, सिंपली ले सकते हैं वी विश टू. आप ऐसे भी लिख सकते हैं एज पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन वी विश या वी वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी. क्योंकि लाइब्रेरियन लिख रहा है तो लाइब्रेरी के लिए. एज यू गिव 10% डिस्काउंट टू योर कस्टमर्स, बीइंग इंस्टीट्यूशनल बायर्स वी वांट मोर 20% डिस्काउंट. मीन normally you provide 10% discount to your customer, but because we are institutional buyers and we will buy many books from you, so you have to give 20% additional discount. It goes without saying that you will have to bear the expenses involved in the dispatch and delivery of books. Mean जो सेंडर है वो सारी चीजों को क्लियर कर रहा है. ये नहीं कि भाई चीजें पहुंच जाएंगी तब आप डिलीवरी चार्जेस उनसे मांगेंगे, ऐसा नहीं, वो पहले ही क्लियर कर रहे हैं. The list of the books with their particulars is mentioned below. कौन कौन सी बुक्स मंगवानी है, कहा लाइब्रेरी ने बुक्स मंगवानी, लेकिन कौन कौन सी मंगवानी है उनको हम एक कैटलॉग फॉर्म में डाल सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट लाइक दिस: सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम और नेम ऑफ द बुक्स. अगर बुक्स हैं तो बुक्स, कोई होम अप्लायंसेज या कुछ और मंगवा रहे हैं तो नेम ऑफ आइटम, क्लास या क्वालिटी, ब्रांड, आप जो भी मेंशन करना चाहो वो हो सकता है. अब बुक्स हैं तो ऑथर होंगे या उनके पब्लिशर होंगे, और क्वांटिटी कितना मंगवाना है. जैसे सपोज कीजिए मैंने एग्जांपल डाले हैं हॉर्नबिल. क्लास कौन सी हॉर्नबिल की? 11th. इसमें पब्लिशर क्या है? एनसीईआरटी. ऑथर पर्टिकुलर नहीं आता, एनसीईआरटी. कितना मंगवानी है? 12 कॉपीज और 12 बुक्स. ऐसे आप कर सकते हो. सिमिलरली बायोलॉजी, क्लास डाल दी, पब्लिशर डाल दिया. अगर कोई पर्टिकुलर राइटर है वो भी डाल सकते हो, कितनी कॉपीज मंगवानी है वो. मैथमेटिक्स, सिमिलरली फ्लैमिंगो. अब मैथमेटिक्स है जैसे हम क्लास में मेंशन करनी पड़ेगी क्योंकि सबके लिए मैथ्स है. एनसीईआरटी एंड इसमें आर.डी. शर्मा क्या है? ही इज ऑथर राइटर. तो ये क्या है? पब्लिकेशन है. तो यहाँ पर क्या है? पब्लिशर और आर.डी. शर्मा राइटर का नाम आ गया. 10 फॉर ईच. 10 फॉर ईच का मतलब क्या है? 10 एनसीईआरटी के और 10 आर.डी. शर्मा की. इस तरह से हम 5-6 जितने भी, मतलब अगर स्पेसिफिक कर रखा है कि 4 और 5 बुक्स आपको मंगवानी है या 4 और 5 का ऑर्डर देना है, जितना ऑर्डर दे रखा मिनिमम उतना तो करना है. यू कैन ऐड मोर. आप अपनी जो रेफरेंस बुक होती हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं. अब क्वालिटी के बारे में और चीजों के बारे में बात करते हैं. द बुक्स शुड बी ऑफ लेटेस्ट एडिशन एंड प्रॉपरली कवर्ड. कैसा ना हो कि पब्लिशर जो है या जो मैनेजर है वो कैसे भी आपके पास बुक भेज दे, वो पहले ही क्लियर करना है. द बुक्स शुड बी ऑफ लेटेस्ट एडिशन एंड प्रॉपरली कवर्ड. वैसे तो एनसीईआरटी की बुक जो है वो जबकि पब्लिश्ड है वो वही है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए आर.डी. शर्मा या कोई और दूसरी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक मंगवानी है तो उसमें आप कर सकते हैं उनको लेटेस्ट एडिशन एंड प्रॉपरली कवर्ड. प्लीज इंश्योर दैट द डिलीवरी ऑफ ऑल बुक्स इज मेड बाय 15th June 2020. अब ये 15th जून ये ध्यान रखना है कि जो हमने सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट लिखी है उसके बाद की डेट होनी चाहिए. एनक्लोज्ड फाइंड अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹2000 और 1000 और जितना भी कैश आपको लगता है, तो हमने मतलब कैश का एडवांस में बैंक ड्राफ्ट इतने का दे दिया है. द बैलेंस पेमेंट विल बी मेड बाय बैंक ड्राफ्ट.
अब 1000 की एडवांस पेमेंट हो गई है, उसके अलावा जो बचता है उसके जैसे मैंने आपको बताया थ्रू बैंक ड्राफ्ट हो सकती है, इन कैश हो सकती है, या बाय पेटीएम। तो कोई भी मोड ऑफ पेमेंट आप यूज कर सकते हो। द बैलेंस पेमेंट विल बी मेड बाय बैंक ड्राफ्ट, इन कैश, बाय पेटीएम एट the time of delivery. Hoping for a quick supply. Then complimentary clause, yours faithfully or yours truly, you can write. डेजिग्नेशन जो भी जिसने भी आपको लिखा है ये नीलम या नकुल जो भी राइटर जो भी सेंडर है, एंड हिज डेजिग्नेशन इन द ब्रैकेट. सो इन दिस वे we will finish or we will complete a letter for placing order. Thank you.